नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेट डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे मित्रों हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 એટલે કે કક્ષા 8 હિન્દી વિષય જે આપણી જે દ્વિતીય સત્રાંતની જે પરીક્ષા હતી એટલે કે પ્રશ્ન એકમ કસોટી હતી જે તારીખ 21/12/2024 ના રોજ હતી। તો એનું મિત્રો આજે સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। આ સિવાય એમની સોલ્યુશનની પીડીએફ તમને ક્યાંથી મળશે એની પણ ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું। तो खास तमारे केटला गुण आवे छे ए अवश्य कॉमेंट करजो जेथी करीने अमने पण ख्याल आवे। अने हाँ, आमांथी ज तमारा वर्ग शिक्षके 25 गुणनुं पेपर काढ्युं हशे तो तमारे केटला आवे अवश्य कॉमेंट करजो। तो चालो विद्यार्थी मित्रों आपणे वात करीए। प्रश्न 1 छे, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ मित्रों, उतावळमां मित्रों कोई प्रश्ननो जो जवाब भूलथी कोई खोटो बोलाई जाए तो तमे साचो जवाब छे कॉमेंट करी शको छो, जेथी आपणे एने पिन करी दईए एटले बीजा विद्यार्थीने ख्याल आवे। कोई एवो उद्देश्य होतो नथी खोटो करवानो, पण बने क्यारेक एवुं भूलथी थई जतुं उतावळथी तो तमे साचो जवाब कॉमेंट करी शको छो। चालो आपणे आगळ वधीए। पेरेग्राफ तमे मित्रों सरस मजानो वांची लेजो, विडियो पॉज करीने आपणे प्रश्न जवाबनी चर्चा करीए। जिसका जन्म अभी अभी हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म अभी अभी हुआ है उसे नवजात शिशु कहते हैं। राष्ट्र की प्रगति के सक्रिय योगदान कौन दे सकता है? तो कि शिक्षित मनुष्य भी राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकता है। जो तीसरा सवाल, मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है? तो कि मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। चौथा सवाल, सर्वांगी विकास के लिए पाठशाला में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सर्वांगी विकास के लिए विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उसे नृत्य, संगीत एवं खेलकूद के आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। पांचवा सवाल, देश का नाम सर्वाक्षरों में लिखवाने के हेतु क्या करना चाहिए? तो देश का नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखने के लिए शिक्षा, विज्ञान, खेल, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट हासिल करनी होगी। साथ ही ईमानदारी और मेहनत से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना होगा। तो आ रीतना मित्रों आपणे एना जवाब थशे। હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવું કહે છે કે સર અમારે આ સિવાય જે પાઠની સમજૂતી બાકી છે બીજા વિષયના વિડીયો જોવે તો ક્યાંથી મળશે? તો મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન છે વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, એ પહેલાં તમને શું શું મળશે એ ચર્ચા કરી લઈએ। તો જો દરેક પાઠના દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાય અભ્યાસ સોલ્યુશન એની પીડીએફ, મટીરિયલ, પેપર, અસાઇનમેન્ટના પરીક્ષા સમયે રેડી। हाँ, પછી આ સિવાય એકમ કસોટીના પીડીએફ એની સમજૂતી મળે છે, ખાસ સ્વઅધ્યયન પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, આ બધું જ તમને મળશે। ક્યાંથી મળશે? તો મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન છે વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જે તમે પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમને ડાઉનલોડ કરો છો ને, હા ત્યાં જઈને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાની, પછી ઓપન કરશો એટલે પેજ આવશે। અહીંયા તમારે તમારો મોબાઈલ નંબર નાખવાનો અથવા તો તમારા ઘરે તમારા માતા પિતા કોઈ પણનો નાખીને સેન્ડ ઓટીપી કરશો એટલે 4 આંકડાનો ઓટીપી આવશે, નાખી દેશો તમે લોગિન થઈ જશો। હવે આવું કંઈક પેજ આવશે। હવે અહીંયા પહેલાં જશો પેઇડ કોર્સમાં તો ત્યાં તમને એક ધોરણ 8નું ફોલ્ડર જોવા મળશે। એમાં જશો તો ત્યાં તમને આ જે પ્રશ્ન બેંક છે સંપૂર્ણ ટાઈપિંગ સાથે સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ત્યાંથી મળી જશે। આ સિવાય અહીંયા જશો તો ધોરણ વાઇઝ તમારા વિષય આવશે। હા, જે વિષય ધોરણ આવશે, માની લો કે તમારે ધોરણ 8માં જવું છે તો એની પર ક્લિક કરશો એટલે એના વિષય બધા ખુલશે। જો આવી રીતના એની પર જે વિષયમાં જોવું હોય પાઠ, હિન્દી, ગુજરાતી, વિજ્ઞાન, ગણિત, સામાજિક વિજ્ઞાન, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત બધામાં જે વિષય ક્લિક કરશો પાઠ આવશે। બધું સંપૂર્ણ વિડીયો બધા જ ફ્રી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકશો। ઇવન આપણા વિડીયો મિત્રો શાળા મિત્ર એપ્લિકેશનમાં પણ છે, તો તમે આ રીતના ધોરણ વાઇઝ બધા વિડીયો જોઈ શકો છો। મિત્રો તમારા નાના મોટા ભાઈ બહેનને કે જે પણ કંઈ હોય એને શેર કરજો, કેમ કે આપણી ચેનલમાં ધોરણ 3 થી 12 સુધીનું મટીરિયલ છે તો એમને પણ ઉપયોગી બની શકે। તો ચાલો બીજો વાત કરીએ વિભાગ 2, એમાં તમને સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, તમે વિડીયો પોઝ કરીને વાંચી શકો છો। ચાલો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ। 1, नदियों का जल निर्मल क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह जीवन के लिए आवश्यक है और प्रदूषण के स्वास्थ्य समस्या इससे हो सकती है। नदियों पर बांध बांधने का क्या क्या लाभ है? तो कि जल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लाभ होते हैं। नदी को धरती का धमनी क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि नदियाँ जल की धरती के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचती है, जिसे धमनियों की रक्त को शरीर में फैलाती है। ऐसे ही काम कौन करता है? नदियाँ। इसीलिए क्या कहते हैं उसे? नदियों को धरती की धमनी कहते हैं। चहुमुखी का अर्थ क्या है? तो कि चारों दिशाओं का विभिन्न प्रकार। नदियों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नदियों हमारी जीवनदायी है और उसके बिना जीवन संभव नहीं है। चलो ત્રીજો સરસ મજાનો તમે વિડીયો પેરેગ્રાફ વાંચી શકો છો। આપણે સવાલ જોઈએ। असाध्य कार्य को कैसे साधा जा सकता है? तो कि यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है।
निरंतर अभ्यास करने के प्रचलित हुए 2 बालकों के नाम बताइए। तो निरंतर अभ्यास करने पर प्रचलित होने के 2 बालक अर्जुन और एकलव्य। चलो आगे बढ़िए। धनुर्विद्या में कौन सा शस्त्र चलाने की विद्या दी जाती है? धनुर्बाण चलाने की विद्या दी जाती है। बुद्धिमान शब्द का विरोधी शब्द चयन कीजिए, परिशिष्ट झुंड कर लिखिए। तो बुद्धिमान का विरोधी शब्द आएगा मंद बुद्धि। वरदराज कैसे पंडित बना? तो क्या निरंतर अभ्यास के वरदार पंडित बना। नेक्स्ट विभाग 4 જોઈએ। कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम गोल है? तो कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो जवाब आवश्य मित्रों, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हॉकी में अद्वितीय कौशल और अपूर्व खेल क्षमता दिखाई, जिससे उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। खेल रत्न पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन 19 अगस्त को मनाया जाता है ताकि उन्हें लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले और खेलों को बढ़ावा दे सके। चलो नेक्स्ट જોઈએ। प्रश्न જોઈએ આપણે, हमें व्यायाम करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो व्यायाम करते समय हमें खाली पेट करना चाहिए, श्वास लेने छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए और श्वास फूलने पर व्यायाम रोक देना चाहिए। बीजो सवाल, शरीर की सुडौलता कैसे संतुलित हो सकती है? तो कि शरीर की सुडौलता सभी अंगों को प्रभावित करने वाले व्यायाम करने से संतुलित हो सकती है, जिससे अंगों की शक्ति और लचीलापन बढ़ता है। तीजो सवाल, व्यायाम के समय श्वास पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है? तो कि श्वास पर ध्यान देना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि श्वास की सही प्रक्रिया से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक रहती है और व्यायाम में अधिक ऊर्जा मिलती है। चौथो सवाल, प्रातःकाल का समानार्थी शब्द लिखिए। प्रातःकाल का समानार्थी शब्द सुबह है। आपको व्यायाम पसंद है, क्यों? हाँ, मुझे व्यायाम पसंद है क्योंकि उससे शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। तो आ रीतना मित्रों एमना प्रश्नोना जवाब थशे। नेक्स्ट है प्रश्न 2। चलो रेडी। एम આપણે प्रश्नનો उत्तर देवाना है कि डायरी के लिए उन्हें किन्हीं 2 शब्दों के प्रयोग कीजिए। तो कि स्मृति का और यादें और दिनचर्या लिखने के लिए किया जाता है। कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो कि समखिलाई का कच्छ को प्रवेश द्वार किया जाता है। रेगिस्तान का समानार्थी मरुभूमि। भुज के दर्शनीय स्थल के नाम दीजिए। तो क्या आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि। डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? तो कि डायरी प्रतिदिन, सप्ताह, पाक्षिक अथवा मासिक की लिखी जाती है। चलो नेक्स्ट જોઈએ। बीजा विभागનો प्रश्न જોઈએ। डायरी पढ़ने से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो उससे जीवन में घटी घटनाएं की जानकारी प्राप्त होती है। बीजो सवाल, शिकायत के संदर्भ में लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहा जाता है? तो शिकायत के संदर्भ में पत्र लिखे गए पत्र को कार्यशीलन प्रकार का पत्र कहा जाता है। तीजो सवाल, कच्छ की शेर इकाई के अनुवाद का नाम लिखिए। तो कच्छ की शेर इकाई का अनुवाद का नाम है महेश, अनुवादक का नाम है महेश उपाध्याय। पुस्तक विक्रेता के लिए गए पत्र की किस प्रकार का पत्र कहा जाता है? तो कि पुस्तक विक्रेता के लिए लिखे गए पत्र को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। गुरु नानक के चरण के पावन भूमि का नाम क्या है? तो गुरु नानक के चरण के पावन भूमि का नाम लखपत है। चलो नेक्स्ट જોઈએ। विभाग 3 જોઈએ। भूज शहर के वैभव का प्रतीक किसे माना जाता है? तो भूज शहर का वैभव का प्रतीक આપણે આગળ જોઈએ એ પ્રમાણે જવાબ છે બધો। चलो 72 जिनालय कहाँ स्थित है? तो 72 जिनालय मंडवी में स्थित है। पानंद्रो किस लिए प्रसिद्ध है? तो कि खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नियंत्रण पत्र किस हेतु लिखा जाता है? तो कि नियंत्रण पत्र जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए लिखा जाता है। डायरी लिखन करने के सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो डायरी लिखने पर सबसे पहले स्थल तारीख लिखा जाता।
चौथो विभागना प्रश्न જોઈએ। भुज के उत्तर दिशा की ओर कौन सा पहाड़ है? तो जवाब आवशे मित्रों, भुज के उत्तर दिशा की ओर काला डूंगर पहाड़ है। धोलावीरा में कौन सी प्राचीन संस्कृति के अवशेष दिखने को मिलते हैं? तो जवाब आवशे मित्रों, यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। पत्र में पता किस ओर लिखा जाता है? तो पत्र में पता बाई ओर लिखा जाता है। वायुसेना का मुख्य अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना का मुख्य अड्डा नलियाम पर स्थित है। कच्छ का म्यूजियम क्यों कहा जाता है? तो क्या उनके दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम संग्रहालय कहा जाता है, कह सकते हैं। बे मत कोई पण लखी सको। रेडी, चलो। कच्छ यात्रा को कहाँ पूर्ण होती है? तो कच्छ यात्रा सूरजबारी से पूर्ण होती है। कच्छ की शेर इकाई के लेखक का नाम क्या है? तो के हरेश ढोलकिया। निमंत्रण पत्र किसने किसको लिखा है? तो निमंत्रण पत्र स्नेहल ने साहिल को लिखा है। पत्र समाप्त होने पर नीचे दिए बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। तो पत्र में अंत में पत्र लिखने वाले का नाम और संबंध लिखा जाता है। आचार्य को संबोधन में क्या लिखा गया है? आचार्य के संबोधन में श्री आचार्य महोदय लिखा गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना अनुसार लिखिए। एમાં છે अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो अहीं तमे विडियो पॉज करीने જોઈ શકો છો। रेडी, चलो। सरस मजानो पत्र आप्यो छे। આવી જ રીતના छुट्टी पाने के लिए अध्यापक को पत्र लिखिए। तो तमे विडियो पॉज करीने જોઈ શકો છો। एवो सवाल है, गांव में फैली गंदगी दूर करने के लिए अधिकारी का पत्र लिखिए। तुम विडियो पॉज करीने सरस मजानो જોઈ શકો છો। खेल में असफल अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो तमे જોઈ શકો છો, सरस मजानो पत्र लखेलो छे। आ बधुं मित्रों तमने पीडीएफ में मळी जशे। पीडीएफ आमे जे तमने आगळ जणावी क्यांथी मळशे? तो कई पेड कोर्स में धोरण 8 ना फोल्डर में आखी संपूर्ण टाइपिंग वाली पीडीएफ मळी जशे। प्रवास में जाने की अनुमति पाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। वीडियो पॉज करीने तमे लखी शको छो। चलो, हवे शुं करवानुं छे? मातृभाषामां अनुवाद करवानो छे। तो तमे आ वीडियो पॉज करीने आखो જોઈ શકો છો। रेडी, सरस मजानो मातृभाषामां अनुवाद कर्यो छे। आमांथी पण तमारे मातृभाषामां अनुवाद करवानो छे। आ पेरेग्राफमां तमने कोई पण एक पूछाशे। रेडी, चालो જોઈ શકો છો। हाँ, आ संवाद छे। हवे तमारे एने हिंदीमां अनुवाद करवानो छे। आपणे अत्यार सुधी हिंदीमांथी गुजराती जोयुं, आ गुजरातीमांथी हिंदीमां जवानुं। रेडी, तो आ रीतना एमनो जवाब आवशे। परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो तमे જોઈ શકો છો। अत्यारे ચોમાસું ચાલે છે, તો કે अभी मॉनसून चल रहा है। ए रीतना तमारे हिंदी में जवान। आ रीतना गुजराती समाज ली जवानो छे, हिंदी में अनुवाद करवानो छे। चलो, हवे दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आमां आवशे अभियान, अंतरिक्ष, आहट, चंद्र। साचो जवाब ज आपणे मित्रों बोलीए छीए डायरेक्ट। पंकज, प्रार्थना, पूनम, पृथ्वी, कल्पना, परस्मय, भारतीय संगीत, कंचन, क्षितिज, विश्वास, सुंदर, महकना, शायर, संग्राम, हमदर्द, कमल, पुष्प, बालक, विग्रह, विहग, जंगल, जुबान, ज्ञान, निर्माण, कोश, पंथक, पृथक, सरल स्वभाव, समझ, संत, सितार, सैनिक, वंदन, विनय, वृक्ष, व्याध, दयावान, ममता, मंत्र, मूलवान, चिराग, पाठशाला, सितारा, हाथी, अवकाश, इकलौता, धूम, शौर्य, महाराज, मंगल, मीठा, मेजर, दंगल, दया, दिशा, दूर। मित्रों पहला दया आवशे, दया पछी आवशे दंगल। चलो रेडी, आ एक खास करेक्शन करी लेजो। चलो आगळ वधीए। गुंजित, गुंजन, निर्माण, निसर्ग। तो आमां शुं आवशे मित्रों? हाँ, ऊंधा थई गया छे એટલે આપણે જવાબમાં થોડી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે। હું ડાયરેક્ટ આપણે સાચો જવાબ જ લખી દઉં છું। તો આમાં આવશે પહેલું આ આવશે, બીજું આ આવશે, ત્રીજું આવશે આ અને ચોથું આવશે આ। ચાલો રેડી, એ રીતના સાચા જવાબ આવશે। ઉજાગર, ઉજાસ, ઉદ્યાન અને ઊંચાઈ। રેડી, તો આમાં શું આવશે? ઉજાગર,
ઉજાગર આવશે, પછી ઉજાસ આવશે, ચાલો પછી ઉદ્યાન આવશે, રેડી જ છે, અને ઊંચાઈ આવશે, આવશે ને એટલા માટે. ચાલો ચાલો આ રીતના એમનો સાચો જવાબ જ છે, જોઈ લેજો. ચાલો આગળ વધીએ. હા, આમાં પણ આ રીતના છે જવાબ છે, કલર આપણે આપેલો નથી. ચાલો પછી અહીં ક્ષમતા ને એ બધું છે, જોઈ શકો છો. તો આ રીતના મિત્રો એના સાચા જવાબ થશે. તો તમે વિડીયો પોઝ કરીને સરસ મજાના બધાના જોઈ શકો છો. રેડી? ચાલો તો આ રીતના મિત્રો આપણું જે પ્રશ્ન બેંક છે એનું પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન થયું. રેડી? આવી રીતના મિત્રો તમને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેં તમને અગાઉ જણાવ્યું એ રીતના ક્યાંથી મળી જશે? પેડ કોર્સમાંથી. તમારે જો જે પ્રશ્ન બેંકની સોલ્યુશનની પીડીએફ જોઈતી હોય તો તમને ક્યાંથી મળશે? પ્રશ્ન બેંકની ખાલી પેપરની, તો એક્ઝામ પેપરમાં ફોલ્ડરમાં મુકાઈ ગઈ છે, તો ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો. તો ખાસ હજી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું બાકી હોય તો શેર કરી દેજો, જેથી કરીને એ લોકોને પણ માહિતી મળી રહે. અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ આ બધું જ બેડથી જ મળી જશે. એ તમને આપણી જેમ અગાઉ જણાવ્યું એ રીતના તમને ત્યાંથી એપ્લિકેશનમાં મળી જશે. તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.